Now, children, are you listening? सारे बच्चे क्या सुन रहे हो? Are you all listening? क्या आप सारे बच्चे सुन रहे हो? Now you must look at me. आप सब मेरी Okay. ओर देखें। How many fingers? ये कितनी उंगली है? Now? अभी Okay. Are you listening? आप सुन रहे हो? Please keep listening. आप सुनते रहे। Did Jesus, you must answer my question. और आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। Very easy questions. बहुत ही आसान प्रश्न है। Did Jesus come to earth as a man or as a baby? यीशु मसीह संसार के अंदर एक आदमी बनकर आया या एक बच्चा बनकर आया? As a baby. एक बच्चा बनकर आया। Right. सही जवाब। He came from heaven. स्वर्ग से आया। God can do everything, right? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ठीक, सही है। So Jesus could have come like a man. और यीशु मसीह एक बड़े आदमी के रूप में आ सकता था। When he came from heaven, he could have come like a full-grown man. और एक बड़ा जो व्यक्ति होता है आदमी, उसके समान वो आ सकता था। Do you know why he came as a baby? आपको पता है क्यों वो एक बच्चे के स्वरूप में आया? So that he can be an example for little children. ताकि वो आप जैसे छोटे बच्चों के लिए उदाहरण बन सके। If he came as a man, अगर वो बड़े आदमी के समान आता, then he can only be an example to grown-up people. तो जो बड़े लोग हैं उनके लिए वो उदाहरण बन सकता था। But do you know this wonderful news that God, Jesus wanted to be an example for you children also? आप ये जानते हैं कि कितनी अद्भुत खुशखबरी है कि आपके लिए भी परमेश्वर जो बच्चों के लिए उदाहरण के रूप में आना चाहते थे। Now there are many things written in the Bible about what Jesus did as a man. बहुत सारी चीजें बाइबल में लिखी है जो यीशु मसीह ने एक मनुष्य होने के नाते की है। But there are only one or two things written about him when he was a little child. और एक या दो चीजें यीशु मसीह के बारे में लिखी है जो उसने छोटे बचपन में की थी। And let me read it to you. मैं आपके लिए पढ़ना चाहता In हूँ। Luke's Gospel, लूका, now you don't have a Bible, it doesn't matter, just listen to me. आपके पास बाइबल नहीं हो तो मेरे लिए सुने। Luke's Gospel, लूका का शुभ समाचार chapter 2, दूसरा अध्याय। we read here that when Jesus was a little child, जब यीशु मसीह एक छोटा बच्चा था, verse 51, 51 वचन, he grew up in a town called Nazareth, वो नासरत के नगर में बड़ा हुआ and he obeyed his father and mother every day. और प्रतिदिन उसने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। That's one thing we read about Jesus as a little child. और यीशु मसीह जब छोटा था उसके बारे में ये वचन हम पढ़ते हैं। What did he do? उसने क्या किया? Right. Now I'm going to ask a question to those who are not looking at me. If you don't look at me, I'll ask you. अगर आप मुझे कुछ मेरी ओर नहीं देख रहे, मैं प्रश्न पूछूंगा। I'm looking at those who are not looking at me. और जो मुझे नहीं देख रहे उनकी तरफ Then मैं देख I रहा will हूँ। tell you to answer the question. और फिर मैं आपको पूछूंगा मेरा जवाब देने के So लिए। you better look at me and listen to me. तो अच्छा है कि आप मेरी ओर देखें। He was obedient as a little child. और छोटा बच्चे होने के नाते वो एक आज्ञाकारी बच्चा था। Now you tell me honestly, आप मुझे ईमानदारी से कहे, is it easy for you to obey your daddy and mommy? कि आपके माता पिता का आज्ञा आप पालन करना क्या है आसान है? But most of you, the answer is no. ज्यादातर बच्चे कहेंगे नहीं। When I was a little boy, जब मैं छोटा बच्चा लड़का था, it was not easy for me to obey my parents. और तब मेरे लिए माता पिता के आज्ञा पालन करना आसान नहीं था। It's not easy for anybody. और किसी के लिए भी आसान नहीं है। Some things are easy. कुछ चीजें बहुत आसान है। Supposing your mommy says, eat up that ice cream. और अगर आपकी मम्मी कहती कि इस आइसक्रीम को खा लो, This ice cream. आइसक्रीम को, Ice cream खा लो. Eat it. Is that easy? आइसक्रीम खाना आसान है? Such things it's very easy. ऐसी चीजें बहुत ही आसान है। And supposing your daddy and mommy say, now stop playing and go to bed. और अगर आपके माता पिता कहते खेलना बंद करके सोने जाओ, That's not so easy because you want ये to आसान नहीं play. है। You want to play some more. और आपको और खेलना है। I know that because I had children. क्योंकि मुझे पता है क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं। They used to play cricket outside the house. और घर के बाहर वो क्रिकेट खेलते थे। And they never get tired of playing cricket till it becomes dark. They'll be praying. और जब तक अंधेरा नहीं होता वो कभी भी क्रिकेट खेलने से थकते नहीं।
Whenever I tell them, okay, now finish, come and do your homework, और फिर मैं उनको बोलता था अभी बहुत हुआ, अभी आकर अपना होमवर्क करो। they say, Daddy, just few minutes. और वो कहते कि पापा कुछ मिनट Just खेलने 5 दो, minutes. और 5 मिनट, 5 minutes means 45 minutes. और 5 मिनट मतलब 45 मिनट हो जाता है उनका। So that is how all children are. ऐसे ही सारे बच्चे होते हैं। It's not easy to obey immediately and completely. और पूरी तरह से और तुरंत माता पिता की And आज्ञा पालन you करना know, आसान नहीं होता। for Jesus, it was not just coming inside from playing games. और यीशु के लिए केवल बाहर खेलने के बाद घर पर आना उतना ही नहीं था। He was in a very poor home. वो एक बहुत ही गरीब घर में था। Now, when you want water in your home, what do? और जब आपको आपके घर में पानी चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं? Who's not looking at me? मेरी तरफ कौन नहीं देख रहा? I'll ask you. मैं आपको प्रश्न पूछूंगा। If you want water in your home, you just open the tap. आपको अगर पानी चाहिए होता है घर में तो आप नल को खोलते हैं, You get water. पानी मिलता है। In Jesus' house, there was no tap. और यीशु के घर में कोई नल नहीं था। If they wanted water, अगर उनको पानी चाहिए हो तो they had to walk long distance to the well. तब बहुत लंबा चलकर कुएं के पास जाना पड़ता था। In the village, there'd be one well. और एक गांव के अंदर एक कुआं होता था। And sometimes it's 1 kilometer away. You got to walk about 20 minutes to reach the well. और कई बार तो 1 किलोमीटर तक 20 मिनट तक चलकर जाना पड़ता था पानी लाने के लिए। Take a bucket एक बकेट लेकर and pull the water up from the well and pour it into the bucket, और फिर उस कुएं में से पानी निकाल कर वो बकेट में डालना and you have to bring it home. और फिर धीरे घर पे लेकर आना। You have to be very careful because if you waste it all, again you got to go to the और well. आपको बहुत सावधानी रखना पड़ता था, अगर बीच में रास्ते में कहीं गिरा दिया तो वापस जाना पड़ेगा। You know, it's not like opening the tap and we keep brushing our teeth and the tap is running. और ऐसा नहीं कि नल खोल के हम बस ब्रश करते रहे, पानी जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Jesus couldn't do that. और यीशु ऐसा नहीं कर सकता था। He had to be very careful with the water he used. और उसके पास जो पानी था उसको बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना था। So if Jesus, one day the mother tells Jesus और एक दिन माता यीशु से कहती है, when he's 12 years old, जब 12 साल का यीशु था, okay, Jesus, now stop playing that game. और यीशु अभी वो जो खेल है खेलना बंद कर दो, Come inside. घर पर आओ, I want you to go and get some water for me. मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। What do you think Jesus said? और आप क्या सोचते हैं यीशु मसीह ने क्या बोला होगा? Mummy, wait. It's my turn to bat now. I can't come now. और वो यीशु मसीह ने कहा कि मम्मी तू अभी वेट कर, मेरा अभी बैटिंग करने का टाइम है। No. ऐसा नहीं। It says here he was obedient. यहाँ पे लिखा है वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी Even था। if it was his turn to bat, यहाँ तक कि उसको बैटिंग करने का उसका टाइम था, फिर भी he would drop his bat वो वहाँ पे छोड़ देगा, and he'd go. वो वापस जाएगा। And you know, it says in the Bible, और बाइबल में ऐसा लिखा है, Ephesians in chapter 6, इफिसियों 6 अध्याय, it's a promise for children. और ये बच्चों के लिए एक वायदा है। Ephesians 6, it says, इफिसियों 6 अध्याय, children, obey your parents बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करो and honor your father and mother, और माता पिता का आदर करो, and then it will go well with you. और उसके ऐसा करने से आपके साथ कुशल होगा। That's for your own good. ये आपके भलाई के लिए है। If you obey your daddy and mummy, यदि आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे, now no talking, you got to listen to me. आपस में बात नहीं करो, Otherwise मेरी I'll तरफ ask, देखो। I'll ask you a question. नहीं तो मैं आपको प्रश्न पूछूंगा। If you obey, it will go well with you. यदि आप आज्ञा पालन करते हो तो आपके साथ भला होगा। What does it mean it will go well with you? और आपका भला होगा इसका मतलब क्या होता है? You won't get sick. आप बीमार नहीं पड़ेंगे। When you're doing a examination in school, Jesus will help you. आप जब परीक्षा एग्जाम में लिख रहे हैं तभी यीशु मसीह आपकी मदद करेंगे। God is watching all the time. परमेश्वर हमेशा आपकी ओर देखते हैं। You know that God can see everybody all the time. और क्या आपको पता है कि परमेश्वर हर किसी को हर समय देख सकता है? Nowadays in some places they have small cameras that are watching people all the time. और आजकल वो कैमरा होता है जिससे वो आप लोगों को देखते हैं कैमरा से। So God is watching all the time. और परमेश्वर हमको हर एक समय देखता है। He can hear what you're talking to your daddy and mummy. और आप जो अपने माता पिता से बात करते हैं परमेश्वर उसे सुन सकता है। He can hear how you are talking. और आप कैसे बात करते हैं वो भी परमेश्वर सुन सकता है। And if he sees that you listen
He will bless you. और यदि वो परमेश्वर देखता है कि आप माता पिता की बात सुनते हैं तो आपको आशीष देगा। That is the only one commandment God has given to children. और ये एक ही आज्ञा है जो बच्चों को परमेश्वर ने दिया है। For grown-up people, He has given many rules. और जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो बहुत सारे नीति नियम But for हैं। children, बच्चों के लिए one commandment. एक ही आज्ञा है, Obey your parents and honor them. माता पिता की आज्ञा का पालन करो और उनका आदर करो। Simple. बहुत ही You आसान don't है have to remember so many things. और बहुत सारी चीजें याद नहीं करना है आपको। And that will protect you from so many wrong things. और इससे बहुत सारी गलत चीजों से आपका रक्षण होगा। You know, just like if you want to cross a busy road, यदि आपको एक बहुत ही व्यस्त जो रोड है, अगर उस सड़क को आपको पार करना है, you're only 2-3 years old, 2 या 3 साल के आप you हैं, can't cross the road on your own अपने आप से उस सड़क को पार नहीं कर सकते because the car will run you over. और वो कार आपको टक्कर कर देगा। So you hold your daddy or mommy's hand and cross the road. और वैसे आप अपने माता पिता के हाथ को पकड़ते हैं ताकि वो So- आपको वहां से सड़क पार कराए। Why is your daddy holding your hand? और तब माता पिता आपके हाथ को क्यों पकड़ते हैं? It's not to control you, it's to protect you. और आपको नियंत्रित करने के लिए नहीं, लेकिन आपको रक्षण So देने के that लिए, you don't get run over by the car. ताकि कोई कार आपको टक्कर न मारे। So when you obey your daddy and mommy, जब आपके माता पिता का आप आज्ञा पालन करते हो, just like that, they are protecting you from spoiling your life. और आपके जीवन को बर्बाद होने से आपको वो बचा रहे हैं। Because sometimes we don't know what is good for us. और कई बार हमको नहीं पता होता कि हमारे लिए भला क्या है। Have you seen little 1-year-old children putting stones and mud and all in their mouth? क्या आपने 1 साल के बच्चों को देखा है जो पत्थर होता है और धूप मिट्टी होती मुंह में डालता है? Have you seen that? क्या आपने देखा है? Do you put mud into your mouth? क्या आप ऐसा करते हैं? आप मिट्टी को मुंह में डालते हैं? No, right. But when you were 1-year-old, you were also putting mud into your लेकिन mouth. जब आप 1 साल के थे तब भी आप ऐसा करते थे। Why? क्यों? Because you didn't know it was good. It was bad. You didn't know it was bad for you. और आपको ये पता नहीं था कि मिट्टी खाना गलत बात है। So your father and mother will come and take it out. और तब माता पिता आपको आकर वहां से लेकर जाते हैं।